بہت شکریہ تنویر صاحب، راشد صاحب، چودھری فضل الرحمان صاحب. میں چونکہ کافی ٹائم سے میڈیا پہ لوگوں دوستوں سے کو بات نہیں کر سکا، موجودہ جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے جس میں حکومت کی تبدیلی کے بعد کی صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے، میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں لوگوں سے میڈیا کے ذریعہ مخاطب ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ حکومتوں کا جو آنا جانا ہے یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے. آج چونکہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہی آج وہ نہیں ہے، تو آج چودھری انوار الحق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں اور نئی حکومت منتخب ہوئی ہے. مجھے صرف اس لیے اپنے حلقہ سمانی کے لوگوں سے مخاطب ہونے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ حلقہ کے اندر جب لوگوں نے مجھے ممبر اسمبلی منتخب کر کے چوتھی بار بھی بھیجا تو میں نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی کہ حلقہ کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کروں. پچھلے 5 سالوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے اور جلسہ جلوسوں کے ذریعے لوگوں کی یہ جو شکایات تھیں وہ حکومتوں کے خلاف یہ ہوتی رہیں جی کہ پونا سے پیر گلی تک جو روڈ ہے اس کا کام نہیں ہو رہا، وہ منظوری نہیں ہو رہی، اور اس پر لوگ دھرنا دیتے رہے. کچھ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ دھرنے دیتے رہے، لوگوں کے احتجاج رہے. پھر لوگوں کے احتجاج جو ممبر سے ایکسپریس فیڈر براستہ کڈیالہ چوکی جا رہا ہے اس کے لیے احتجاج ہوتے رہے. پھر لوگوں کے احتجاج گریڈ اسٹیشن کے لیے ہوتے رہے، ہاسپٹل کے لیے ہوتے رہے. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب مجھے اپنے ممبر اسمبلی منتخب کر کے بھیجا تو تحصیل سمانی جو رورل ہیلتھ سینٹر تھا اس کو میری گورنمنٹ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا، باقاعدہ نوٹیفائی ہوا، اور اس کی 31 اسامیاں جو ہیں بغیر ڈاکٹرز اسپیشلسٹ وہ موجود ہیں، جس میں جونیئر سٹاف جو ہے وہ اس کا میرے خیال میں تقرریاں بھی ہو چکی ہیں، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ یقیناً وہ ایک پروسیس کے تحت آئیں گے. اور اسی طرح پونا سے پیر گلی اس کی منظوری ہوئی، اس کا ٹینڈر پروسیس ہوا، اس کے بعد ورک آرڈر ہوا، آج اس کا کام شروع ہے. اور اسی طرح گریڈ اسٹیشن کا میں بتانا ضروری یہ سمجھوں گا کہ گریڈ اسٹیشن کی منظوری ہوئی، اس کے پیسے ایلوکیٹ ہوئے، منظوری ہوگی، اس کے بعد اس کا ارتھ ورک موقع پہ کام ہو گیا. لیکن چونکہ اس کا ٹینڈرنگ کا ایشو یہ تھا کہ اس کی جو اسپیسیفکیشن ہے جو کنٹریکٹرز ہیں ان کی، اس میں انہوں نے 1 سال ڈپارٹمنٹ نے لگایا اس کا جو ہے وہ پروسیس کرنے میں. اب وہ پروسیس مکمل ہوا ہے، پیسے اس کے موجود ہیں. اب میں اپنے حلقہ کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں تک گریڈ اسٹیشن کا جو ٹینڈر ہے اس کا پروسیس میں تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ اس کی کوالیفیکیشن وہ مخصوص تھی جو کنٹریکٹرز تھے ان کی، اس وجہ سے اس کی تاخیر ہوئی. اور وہ اگلے کچھ دنوں تک انشاءاللہ وہ کام الاٹ ہونے والا ہے اور اس کے پیسے موجود ہیں، وہ انشاءاللہ موقع پہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا میرے اللہ کے فضل و کرم. اسی طرح سب دوستوں کو پتہ ہے کہ جو ایکسپریس فیڈر ہے اس کی منظوری ہو چکی ہوئی ہے، اس کا پروسیس ہو چکا ہوا ہے، اس کا سامان پول جو ہے وہ ملوانا کے مقام پہ پڑے ہیں، کنڈکٹر جو ہے وہ ممبر کے مقام پہ پڑا ہے. اس کے ٹھیکیدار کو کام الاٹ ہونا باقی تھا کہ جس نے وہ کام پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. اتنی تاخیر ہے. لوگوں کا حق ہے کہ وہ فیس بک پہ تنقید کریں، میں نمائندہ ہوں، مجھ پہ بات کریں، بالکل حق ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کام مکمل ہو چکا ہے. اس کے 53 ملین پیسے جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہو چکے ہیں، پیسہ محکمہ کے پاس چلا گیا ہے. اس کا بھی کام اگلے کچھ دنوں تک شروع ہونے والا ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی سمانی کے اندر 112 کا آفس قائم ہوا، گاڑیاں مہیا کی گئیں، یہ بڑا بریک تھرو ہے. اور یہ جو سارے کام تھے جس کے لیے، اور پھر سونا سے ڈنہ تک جو 5 کلومیٹر روڈ تھی، اگر کسی نے اس کا پروسیس کرایا، کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو بالکل وہ حق رکھتا ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا کہ یونین کونسل کھبا کی ہم نے یہ خدمت کی ہے. اور پونا سے پیر گلی تک روڈ کا کسی کے پاس کوئی فائل ورک ہے، کوئی ثبوت ہے تو وہ کہہ سکتا ہے.
ग्रिड स्टेशन का किसी और के पास कोई सबूत है वो कह सकता है, इस लाइन की मंजूरी का किसी के पास एक्सप्रेस फीडर का सबूत है तो वो कह सकता है, हॉस्पिटल की मंजूरी में किसी का रोल है तो वो कह सकता है। मुझे हैरत इस बात पे है, आज मेरे हल्का के कुछ सियासी वर्कर जो नो वार्द हैं सियासत में, वो कश्मीर हाउस में किसी के साथ जाके मुलाकात करके आ जाते हैं तो वापसी पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी कि हमने अस्पताल के लिए भी बात कर दी है, हमने रोड्स के लिए भी बात कर दी है। मैं सिर्फ हल्का समानी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदा मीडिया पे गुफ्तगू करता है वो इन कामों को ना गिनवाए जो मैंने कर दिए हैं। वो काम जो तहसील समानी के बाकी मांदा काम रहते हैं वो करवा के अमली तौर पर लोगों के सामने पेश करे। यकीनन वो लोगों की दाद का भी मुस्तहिक है, शाबाश का भी मुस्तहिक है, लोगों के वोटों का भी मुस्तहिक है। लेकिन जिन लोगों को कामों का इल्म ही नहीं कि हॉस्पिटल अपग्रेड हो चुका है, पूना की जो सड़क है उस पर काम शुरू हो चुका है, ग्रिड स्टेशन जो है वो मंजूर हो चुका है और उसका अगले कुछ दिनों तक वर्क ऑर्डर जो होने वाला है, टेंडर लाट होने वाला है लोगों को, एक्सप्रेस फीडर का जो है उसका काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये सारे काम जो है, और जो सरसाला के मकाम पे है, एक तारीखी मकाम पे, तारीखी जगह है सरसाला, जहाँ ग्रिड, जहाँ अपना स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है उसकी मंजूरी हुई। 10 साल लोगों ने, सियासी लोगों ने अदालतों में बिला वजह केसेस करवा के उसको ताखीर करवाई, लेकिन आज उसकी चारदीवारी हो चुकी है और मजीद उसका फर्दर काम जो है वो होने को है, जो तहसील समानी का बल्कि एक मिसाली जो है अपने जो स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो बनेगा। इसी तरह 20 किलोमीटर रोड जो हैं, जिसमें ज़्यादातर रोड जो है वो जड़ी चौतरा से लेके पहला तक, ये जो पसमंदा और कालच और डब, ये जो पसमंदा तरीन इलाका था जिसमें दरियाला है, डंगा है, बुढ़िया है, चनई है, और जिसमें उछली दरबार है, जंगड़ है, जंडाला है, लाई जमीन, अपना पहला, ये वो सारे इलाके हैं पसमानदा तरीन जहाँ सड़कें शुरू हो चुकी हैं और बाकी भी इंशाल्लाह शुरू होने वाली हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो काम जो लोगों की ज़रूरत थी उनके नुमाइंदे ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और लोगों तक वो पहुँचाए हैं। जिन लोगों के पास सबूत है, आज एक बंदा जाता है जी, यकीनन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करने का सबको हक है, इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का तल्लुक चूँकि ज़िला पिंबर से है और यकीनन ये उनका अपना ज़िला है और हम ये हक रखते हैं। लेकिन जो काम हो चुके हैं, अब लोग बिला वजह ये कहना चाहते हैं जी कि फलां काम हम करवा रहे हैं, फलां काम हम करवा रहे हैं, फलां हम करवा रहे हैं। जिसके पास कोई सबूत है वो हल्का समानी के लोगों के खिदमत में आप साफ़ी ज़रात के ज़रिया पेश करे तो मैं मान जाऊँगा कि वाकई लोगों की खिदमत का हक उन्होंने अदा किया, मैंने कोई हक अदा नहीं किया। मैं सिर्फ अपने लोगों को ये उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने मुसलसल 4 बार मेरी ज़ात पर एतमाद का इजहार किया है। आज फिर मैं मेंबर असम्बली हूँ, 3 साल बाकी हैं, अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह हल्का समानी के अंदर इसी तरह LOC के ऊपर जितने हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे इलाके हैं, वहाँ भी जिन लोगों से, जिन यूनियन काउंसिल से हमने वादे किए हुए हैं, अल्लाह के फजल और करम से, तरक्याती लिहाज से वो पूरे होंगे। आज भी 3.5 करोड़ लोकल गवर्नमेंट से और 3 करोड़ रुपया जो है ज़िला काउंसिल, ये 6 करोड़ रुपया इसकी स्कीमें लेके लोग ला चुके हैं और उसका मौके पर अमल हो चुका है। और आने वाले माली साल में भी इंशाल्लाह हम 10 करोड़ रुपया जो है इन स्कीम की मद में जो है वो इंशाल्लाह लोगों की खिदमत में देंगे, लोगों को देंगे। मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की खिदमत के लिए अपना जो है वो हक अदा करूँ। लेकिन जो लोग बिला वजह मीडिया के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं जी हम हॉस्पिटल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम सरकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि लोगों को वो गुमराह करें, वो अपने दिमाग का इलाज करें, वो अपने पास रिकॉर्ड रखें और वैसे सियासी वर्कर अपनी तस्हीह करें कि वो लोगों के अलीशान सोनी के किए हुए कामों को अपने खाते में डालने की। और मेरे भाई हैं चौधरी रज़ाक साहब, मैं उनकी कदर करता हूँ, सियासत में अपना इलेक्शन है, लेकिन वो वक्त याद रखना चाहिए जब वो बरजा के मकाम पर ज़मीन पर बैठ के सड़क के लिए एहतजाज कर रहे थे कि और नून लीग की गवर्नमेंट ने उन्हें सड़क नहीं दी, और जब अलीशान सोनी को अल्लाह ने तौफीक दी और मेरी गवर्नमेंट ने और मैंने उनको सड़क दी, तो मेरा ख्याल है कि अखलाकी एतबार से उनको शुक्रिया के 2 लफ्ज़ जो हैं वो बोलने चाहिए थे जो उनको तौफीक नहीं हुई। नंबर 1, बल्दियाती इलेक्शन गुजरा है, मुझे इस बात पर खुशी भी है, फ़ख्र भी है, कोई पछतावा नहीं कि मैंने चौधरी रज़ाक साहब को बहुत बड़ी तादाद में मेंबर ज़िला कौंसल साहिबान के वोट दिए हैं और उनके भतीजे जो है चौधरी जावेद शबीर साहब उनको मेंबर ज़िला कौंसल बनवाया। अब देखना यह है कि 4 इलेक्शन आज यूसुफ साहब मरहूम और अलीशान सोनी और उसका ख़ानदान चौधरी रशीद साहब मरहूम
जो एक इंतहाई अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको सपोर्ट किया और आज फिर वक्त आया तो फिर हमने सपोर्ट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे दोस्तों को और साथियों को ज़र्व का मुजाहरा करना चाहिए और मीडिया पे बैठ के, लोगों में बैठ के इस बात का इकरार ज़रूर करना चाहिए कि अली शान सोनी और उसके ख़ानदान ने हमेशा हम पे एहसानात किए हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें एहसान करने वाला बनाया है। मैं हल्का समानी के लोगों की खिदमत में दस्त बस्ता ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लोगों के बहकामे में, लोगों की गुफ्तगू पर ना जाएं। बलदियाती इलेक्शन हो चुके, साथियों को शिकायत होंगी, होनी भी चाहिए, लेकिन मैं अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि कोई फैसला बदनीति की बुनियाद पर नहीं किया, किसी साथी को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की। बदकिस्मती से जो इलेक्शन हार गए, कमज़ोर हुए, उनको शिकायत ज़रूर हैं। इंशाअल्लाह बहुत सारे तरीके हैं इन शिकायत का अजाला करने के। मैं अपने साथियों पर, दोस्तों पर जो तनकीद भी करते हैं उन पर भी फ़ख्र करता हूँ कि उनको ये हक़ है कि मुझ पर तनकीद कर सकें, और वापसी पर मैं कभी किसी को जवाब नहीं देता। लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तामीर व तरक्की में जिस दिन मुझसे बढ़ के तामीर व तरक्की तहसील समानी में अपनी को साबित करेगा, उसको हक़ पहुँचता है कि वो मुझसे आगे हो। तो मैं इसी पर मीडिया का, दोस्तों का, समानी के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर हमेशा एतमाद का इज़हार किया।